safe in times. After hearty feedback from members on the previous workshop on GEM, I'm sure a lot of you have already privy to that. We're glad to once again host Sri Nitin Jain from Marvel Infocom for another very important workshop on how to effectively bid for government tenders. As you all may know, Sri Nitin Jain is the CEO of National Tenders, the sister company of Marvel Infocom Private Limited, and also an expert on the GEM portal. In the earlier GEM workshop, we came to know that Government e-Marketplace is a one-stop portal to facilitate online procurement of commonly used goods and services required by government departments. Sri Jain also explained to us in the previous workshop that GEM is offering a wonderful opportunity to conduct business across the country without having to invest heavily in marketing or promotions. Of all the sellers and vendors registered on Government e-Marketplace, approximately 26% are MSMEs. We at MCCI believe that the previous GEM workshop conducted by Sri Jain was highly informative for the attendees, where he explained how to best utilize this platform. We hope that this workshop will take the conversation forward to an advanced level where we actually bid and win government contracts. I hope this workshop will prove to be as exciting and informative as the previous one and will help all of you in advancing your business interests via the GEM portal at times when conducting physical business even otherwise is somewhat restricted. I think so. I will not waste everyone's time and go ahead and invite Jainji for his address. Thank you, Nitinji, for joining us today. Thank you for sparing your time, and we all look forward to a very informative and educative session. Over to you, Nitinji. You're on mute. Yes. Thank you so much, Isabji, for beautiful introductions. Once again, thank you so much, MCCI, for inviting me for one of the another topic. It was a amazing experience I had when I visited on Kolkata and had a conversations with, one-to-one with the lots of Kolkata people, and it's my pleasure that I had shared my knowledge that what I have taken from GEM registrations and tender submissions. Well, this is a very important topic, and this is a great initiative from MCCI. How to bid tender is a one thing, and how to effectively bidding the tender, this is the another thing. There are the n number of tenders are available in market, but we cannot bid n number of tenders. Everyone have their own limitations. Depends upon lots of things. There are lots of parameters. If we are not attending the right tender, there would be a possibility we are missing the right opportunities. So today's our topic is effective bidding process. So once again, I would like to show my gratitude, thanks to all the Kolkata peoples that they are sparing time and taking the taking the advantage of initiative taken by the MCCI. So I'm sharing my screen. Yes, sir. All the options are given. All the facilities are given. Okay, ma'am. Thank you. My screen is visible, na? Okay. So before moving ahead, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली पोटेंशियल कितना है गवर्नमेंट के पास. हम हमारे एफर्ट्स लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, बट अगर हमें यही नहीं पता है कि मार्केट का कितना पोटेंशियल है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी चीज़ों के लिए, तो हमें उसका कोई अर्थ नहीं बनता है. दैट व्हाट आई बिलीव एज अ बिजनेसमैन हमेशा अपनी एनर्जी वहीं लगाना पसंद करता है जहां से उसको बिजनेस 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ग्रो करने का एक चांस मिलता है. तो मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल और आज के टाइम में सुलझा हुआ ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी है कि चाहे कितने भी बिजनेसमैन कितने भी डिपार्टमेंट के साथ काम कर ले, सभी के लिए इनफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. चाहे आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे आप रीसेलर्स हैं, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आप किसी भी तरीके का वर्क करते हैं, यहाँ पे हर एक बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है.
या फिर मैं ये कहूं तो ज्यादा सही रहेगा, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अलग अलग टेंडर फर्म्स में अवेलेबल है। अब हमें कौन से टेंडर्स को सबसे पहले सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे हमारे नंबर ऑफ टेंडर या नंबर ऑफ बिड में हम जो पार्टिसिपेशंस करते हैं उनमें से लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। अगर मैं 10 टेंडर भरता हूं और मेरा एक टेंडर लग रहा है, और अगर मैं 10 टेंडर भर रहा हूं और मुझे 3 टेंडर लग रहे हैं, तो मेरी सेम टाइम एनर्जी के कारण अगर साइड राइट सिलेक्शन ऑफ टेंडर्स हैं तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और उसी चीज को हम लोग आज इस प्रेजेंटेशंस में कवर करेंगे कि वो हम हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि राइट नाउ वी आर द $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड our मोदी जीज एम दैट वी विल हैव द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इंडियन इकोनॉमी का 25 to 30% अमाउंट इज पैरिंग इनटू द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आवर वर्क। सो अगर if we are becoming the $5 trillion dollar economy, so you just imagine what kind of amount government is going to spend to procuring good services or work. So these all are happen mean of tendering, and if you are part of this tendering, definitely there is a business opportunities available for your business. Government is the biggest source of India. Approximately 50 lakh plus tenders are publishing in 1 year. There are the more than 55,000 departments, including government, semi-government, PSUs are in market. Only on JAM, they have targeted, they are planning कि 2021 में उन लोगों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस जैम पर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एक मैंने सेगमेंट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किए हुए हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स किस किस तरीके से वर्कआउट करते हैं और ज्यादा पोटेंशियल का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो है, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इंडियन रेलवे, बैंक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स। तो इन सभी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा टेंडर्स निकलते हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। आपका डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशनल्स, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर्स में आ जाते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये साथ में आ जाता है कि हम लोग और डेप्थ में पता करें। जैसे कि अगर आप कोलकाता में हैं तो आपको ये देखना है कि भाई कोलकाता में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है, बंगाल में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है। अगर कोई प्लेयर है जो पास पास के स्टेट्स में काम करता है तो उसे ये जानना जरूरी है कि भाई मेरे आस पास के स्टेट्स में मेरे बिजनेस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो अब अगर आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आप कौन कौन से लोकेशंस पर इजीली सप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कितनी इजीली अवेलेबल है। बिकॉज डिपार्टमेंट के साइड से एक चीज क्लियर है, दे ऑल मीन रिक्वायर FOR, कि आपको उनके डोर तक चीजों को पहुंचाना होता है, एंड यू हैव टू गिव रेट इंक्लूडिंग दिस ऑल रेट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एक मेजर फैक्टर रहता है किसी भी चीज में, कि आपको राइट टाइम पे, राइट तरीके से और इफेक्टिव रेट के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। तो आपको लोकेशन सबसे पहले पसंद करनी है कि आप लोग कहां पे कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी गुड सप्लाई के साथ सर्विसेज बहुत मेजर इंपैक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन लोकेशंस पर, जिन लोकेशंस पे आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, वहां पे अगर आप सर्विस दे सकते हैं, तभी आपको उस टेंडर्स को बिड करना है। एंड थर्ड इज सेक्टर। सेक्टर्स कुछ मायनों में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि काफी लोग अलग अलग तरीके से वर्क करने के लिए सक्षम होते हैं। लाइक किसी को PSU के साथ काम करना ज्यादा फिजिबल लगता है, किसी को लगता है कि यार हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी होगा तो वी कैन डू इजीली वर्क। सो आपको ये देखना है कि आप ज्यादातर किस चीज में फिजिबल है। यू आर ओके विद द PSU डिपार्टमेंट्स, यू आर ओके विद द सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और यू आर नॉट कंफर्टेबल और कंफर्टेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, उसका एक थोड़ा सा लॉजिकल चीज है। मे बी पर्टिकुलर सेक्टर्स के डिपार्टमेंट में वो सूट करता भी है और नहीं भी करता है। सो इसको आप दोनों तरीके से लीजिएगा। काफी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें रिस्पॉन्सेज में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि वो इतने टेक्नो सेवी नहीं होते हैं। अभी चीजें बदल रही है, बहुत
तरीके से डिजिटल एज आ रहा है तो डिपार्टमेंट उनको लोगों को उतना नॉलेज शेयर कर रहा है, बट अभी भी उस लेवल पे वो नॉलेज शेयर नहीं हो पाया है, जिसके कारण डिपार्टमेंट में रहे हुए लोग इतने टेक्नो सेवी नहीं हो पाए हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पॉइंट रखा है कि अगर आप उस तरीके से काम करने के लिए सक्षम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो पीएसयू आर दी वन ऑफ द बेस्ट, जहां पे आप बहुत अच्छे पोटेंशियल के साथ सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं, बिकॉज हियर द पीपल आर मोर टेक्नो सेवी कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सो पीएसयूज पे आप कीजिए, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट एमजी, इट्स अप योर चॉइस। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अब टेंडर्स अगर आप सभी प्रोडक्ट्स के लिए देखने जाएंगे तो देयर आर एन नंबर ऑफ टेंडर्स, तो शायद आप एन नंबर ऑफ टेंडर्स नहीं पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। आपको ऐसा प्रोडक्ट देखना है या तो वो यूनिक है या फिर उसको आप अच्छे रेट पे सप्लाई कर सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स की एक प्रायोरिटी की आप लिस्ट क्रिएट कीजिए कि दीज आर दी प्रायोरिटी लिस्ट, जिसके वेंडर्स मैं कभी मिस नहीं करूंगा, और उसको मैप कीजिए आप लोकेशन के साथ में। उसको आप लोकेशंस के साथ में आपके, जैसे कि अगर आप ए बी सी डी ई इस तरीके से 5 अगर आप प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आपको उनको प्रायोरिटी देनी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी ये, फोर्थ प्रायोरिटी ये, एंड उसके साथ लोकेशन को मैप कीजिए। सपोज कर लिए सी प्रोडक्ट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे है और आपके लिए कोलकाता फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आपको ये कहना है कि अगर कोलकाता में सी प्रोडक्ट के लिए कभी भी टेंडर मिस निकलेगा तो वी शुड नॉट मिस। अगर आप ये एक मैपिंग करके स्टार्टिंग से ही रख लेते हैं अपने पास में, उसका एक चार्ट बना के टेबल पे रख लेते हैं या फिर अपनी टीम को प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी काम हो जाता है और बहुत आसानी से आप राइट टेंडर्स में राइट टाइम पे सबमिट कर पाएंगे, जिससे आपके विनिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएंगे। ये दूसरे तरीके से आपको ये भी हेल्प करेगा कि अगर आप मैपिंग करके जब काम करते हैं, मैपिंग के साथ साथ आप जब रेट वहां पे मेंशन करते हैं, चाहे वो आपको आप वो टेंडर अवार्ड हुआ है या नहीं अवार्ड हुआ है, अगर अवार्ड हुआ है तो किस रेट में आपको अवार्ड हुआ है और एल ट्रू वाले ने क्या प्राइस सबमिट किया है, अगर आप वो दोनों का कंपैरिजन भी वहां पे मेंशन करते हैं तो अपकमिंग जब भी सेम लोकेशन से टेंडर्स निकलता है तो आपके लिए एक इजी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अब मुझे इस टेंडर्स के लिए पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट के लिए मैंने पास्ट में रेट डाला था तो अब मुझे क्या रेट देना चाहिए। देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटीज कि मुझे पहले कम मार्जिन मिला था, अब शायद मैं बेहतर मार्जिन ले पाऊं, या फिर अगर मैंने टेंडर मिस किया था तो कितने मार्जिन से मैंने मिस किया था और अब मैं कितने मार्जिन से काम करूंगा तो मैं टेंडर्स को अवॉर्ड कर पाऊं। अब थोड़ी सी मैं आपको ये बताता हूँ लाइव स्टडी, एक गवर्नमेंट का पोर्टल है eprocure.gov.in, जहां पे बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने बता रखा है कि हमारी टेंडर इंडस्ट्रीज किस तरीके से मूव ऑन हो रही है। राइट, तो ये गवर्नमेंट का ही पोर्टल है eprocure.gov.in, जहां पे आप बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन कर दी है, यहाँ पे हम नंबर वाइज टेंडर्स देख रहे हैं, जहां पे आप ये देखिए 2016-17 में 1,51,000 टेंडर्स निकले थे, 2019-20 में 2,05,000 निकले थे, 2020-21 में जो कि कोविड टाइम कह रहे थे हम लोग, जहां पे कह रहे थे बिजनेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, हैम्पर हुए हैं, उसके अंदर भी देख लिए तकरीबन 1,98,153 टेंडर्स निकले हैं। यानी इतने टफ टाइम में भी अगर डिपार्टमेंट इतने टेंडर्स निकाल सकता है तो अगर ये रूटीन टाइम पीरियड होता तो कितने टेंडर्स निकलते। इससे हमें एक चीज बहुत क्लैरिटी में आ जाती है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां पे बहुत अच्छे रेशियोज में बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर मैं नीचे रेट कंपैरिजन में दिखाऊं आपको तो टेंडर की क्वांटिटी कम हुई है पर टेंडर में जो स्पेंड हुआ है अमाउंट वो 2.53% के रेशियो से ज्यादा बढ़ा है, यानी कम नहीं हुआ है। यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो भी टेंडर्स पब्लिश कर रहे हैं वो कहीं पे भी प्रोक्योरमेंट के अंदर अपनी अमाउंट को कम नहीं कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का जो अमाउंट है, डिपार्टमेंट की जो परचेज की रिक्वायरमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हम अगर टाइम पे इसको क्लिक करते हैं तो हम बहुत अच्छे टेंडर्स में पार्टिसिपेशन करके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सेम अगर हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा टेंडर्स कहाँ निकल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 2020-21 या जो पाई चार्ट्स देख रहे हैं कि वर्क्स के अंदर और गुड्स के अंदर
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं। काफी लोग कहते हैं कि यार वर्क्स के अंदर टेंडर्स ज्यादा होते हैं, लाइक वर्क्स के अंदर आपके रोड कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर दूसरी चीजें हो गई, तो ये सब वर्क्स के अंदर आता है। गुड्स के अंदर मोस्टली सप्लाई हो सकता है, सप्लाई इंस्टॉलेशन हो सकता है, सप्लाई इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस हो सकता है, तो वो गुड्स में आ जाते हैं। और सर्विस में मैन पावर सर्विस हो गया, व्हीकल हायरिंग सर्विस हो गया, इस तरीके से होते हैं। तो मैं यहाँ पे जब देखूं तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल है और सबका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट कहीं नहीं रहा है। बट आप देखने वाली बात यह है कि वर्क्स और गुड्स दोनों का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो ग्राफ है वो मैनेज्ड है, मेंटेन है। यानी ये हम नहीं कह सकते कि गुड्स सप्लाई के टेंडर्स कम निकलते हैं, उतने ही निकल रहे हैं जितने इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स होते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आप आराम से कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी ये कह सकता हूं कि कोई कस्टमर है या कोई कंपनी है जो नई है, आज तक उन्होंने बिड पार्टिसिपेशन नहीं किया है, तो वो लोग मोस्टली ओपन टेंडर्स में ही पार्टिसिपेशन करते हैं। गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है, वो ये नॉर्म्स है कि 50% तक ऑर्डर जो होते हैं वो एमएसएमईज को मिलने चाहिए। तो यहां पे हम देख के पता कर सकते हैं, जब इतना नितिन बड़ा जी, ग्राफ जी। सॉरी टू इंटरप्ट, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं जी। जस्ट अ सेकेंड सर। अब आया। अब है सर? अच्छा। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जो मैंने पैनल ओपन किया है, ये eprocure.gov.in का मैंने पैनल ओपन किया है, जहां पे हम एक सर्वे कर सकते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट टेंडर्स में दिन में दिन बढ़ रही है। यहां पे पहले हमने जो देखा है वो नंबर वाइज देख रहे हैं कि यहां से फिर से देखते हैं इसको। यहां पे हम देख रहे हैं कि 2019-20 में 2,05,000 टेंडर निकले थे, 2020-21 में 1,98,000 टेंडर्स निकले थे। मतलब कोरोना का टाइम पीरियड रहा, फिर भी टेंडर्स निकलने की जो क्वांटिटी में कहीं पे भी कमी नहीं आई है इतनी। अमाउंट वाइज देखें तो टेंडर्स ज्यादा अमाउंट के ही निकले हैं। यानी गवर्नमेंट का स्पेंड, चाहे कोविड टाइम पीरियड है, कभी भी कुछ भी है, बिजनेस कभी कम नहीं होता है। वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती ही है और सभी के लिए बढ़ती है। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में एक रिकॉर्ड देखा गया है कि जेम में जो रजिस्ट्रेशन इस टाइम पीरियड में हुए हैं वो एवर टाइम हाईएस्ट है। मतलब कि ड्यूरिंग लास्ट ईयर ओनली, इफ आई से, more than 6 lakh people have registered their self on JAM and they generated enormous business over there. So ये ई प्रोक्योरमेंट की एक साइट है जहां पे आप अलग अलग तरीके से सर्वे करके देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि गुड्स में, वर्क्स में, सर्विसेज में कितने हैं। टेंडर टाइप्स की इनिशियली जो स्टार्टअप कंपनीज होती है वो ओपन टेंडर में पार्टिसिपेशन करती है। तो यहाँ पे ओपन टेंडर्स हम देख रहे हैं, तो एवरी टाइम ओपन टेंडर्स बहुत अच्छी मात्रा में निकलते हैं, जिससे हर काइंड ऑफ बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन है, चाहे वो मीडियम साइज का बिजनेस है, चाहे वो लार्ज बिजनेसमैन है, हर एक बिजनेस के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो मैंने आपको चीज बताई है, इसको आप थोड़ा सा डिटेलिंग में और जा सकते हैं। ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, या आपको ई प्रोक्योर की साइट से भी मिलेगा, जहां पे आप ये स्टडी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जिन लोकेशंस में आपका फोकस है, जिन लोकेशंस में आप बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोकेशंस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है, वो एक स्टडी आप कर सकते हैं। दूसरी स्टडी आप ये कर सकते हैं, अगर आपके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो आपके किन प्रोडक्ट्स के लिए कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज किस लोकेशंस में अवेलेबल है, ये भी आप सर्वे कर सकते हैं। और उसकी आपको फिर एक लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा कि इनिशियल लेवल पे किन प्रोडक्ट्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलिए, ये तो कुछ हो गया कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हमारे पास में। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना संजीव जी? Yes, sir. Yes, Okay, sir. ma'am. Thank you. So now
बिफोर मूविंग मोर अबाउट इफेक्टिव बिडिंग, पहले हम कुछ टेंडर्स की टर्म्स को समझ लेते हैं कि किस टर्म्स का क्या मतलब होता है. जैसे आप कभी भी कोई टेंडर का डॉक्यूमेंट स्टडी करते हैं तो इट्स बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दी होल व्हाट रिक्वायरमेंट मेंशन्ड इन टेंडर्स. So that will help us to identify कि this tender is relevant for me, the first thing. Second thing, if it's relevant for me, then I should bid this tender or will should avoid this tender. So सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं, अलग 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 टाइप के टेंडर्स होते हैं. टेंडर फर्स्ट टेंडर्स मैंने जैसे आता है ओपन टेंडर्स होता है. ओपन टेंडर जो होता है, टाइप्स ऑफ टेंडर्स हर एक टेंडर डॉक्यूमेंट मेंशन होता है. तो यू हैव टू सी दिस टेंडर इज ओपन टेंडर्स, लिमिटेड टेंडर्स और व्हाट. ओपन टेंडर इज अ काइंड ऑफ टेंडर्स वेयर एनी कंपनी can bid in tenders. He must meet the condition mentioned in the PQC criteria. There's a pre-qualifications criteria. If you are qualified for the PQC criteria, you can submit the tenders and you won't get any disqualifications because of the other clauses. Selective tenders or limited tenders. Department is inviting some limited companies for participating in tenders. They have their own vendor, their registered vendors, and this tender is limited to them on. So these kind of are the limited tender. Negotiate tender is if अगर किसी डिपार्टमेंट को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनी से परचेज करना होता है तो वो डायरेक्ट उस कंपनी को इनवाइट करके उनके साथ नेगोशिएट करते हैं. सिंगल स्टेज और टू स्टेज टेंडर्स. जनरली क्या होता है कि टेंडर्स में दो तरीके के होते हैं, एक टेक्निकल क्राइटेरिया और दूसरा होता है कमर्शियल क्राइटेरिया. अगर आपका टेंडर ओनली एंड ओनली इस तरीके से मेंशन्ड है उसके अंदर कि आपका सिंगल स्टेज टेंडर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कमर्शियल क्राइटेरिया में क्वालिफाई होना है. अगर आप कमर्शियल क्राइटेरिया में क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप टेंडर्स में प्राइस के अकॉर्डिंग आपको टेंडर्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे. अगर टू स्टेज टेंडर है तो पहले आपकी बिड जो है वो टेक्निकली क्राइटेरिया में क्वालिफाई की जाएगी. अगर आप टेक्निकली क्राइटेरिया में क्वालिफाई है तभी आपकी बिड कमर्शियल क्राइटेरिया के लिए देखी जाएगी. अगर आप टेक्निकल क्राइटेरिया में क्वालिफाई नहीं है तो आपकी बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी. मोस्टली कंपनीज ये टेक्निकल स्टेज के अंदर ही जो है वो फेल होती है. तो हम लोगों को PQC क्राइटेरिया, प्री क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया होता है, उसको मेंशन को प्रॉपरली सारे क्लॉज देख लेने होते हैं कि अगर हम वहां पे क्वालिफाई कर रहे हैं सभी क्लॉजेस के अंदर, देन ओनली वी शुड बिड, एल्स वी हैव टू अवॉइड दैट टेंडर. काफी टेंडर्स में बिड के बाद रिवर्स और फॉरवर्ड ऑप्शंस होते हैं, वो टेंडर्स के अंदर ही लिमिटेड होता है. अब यहाँ पे है ना, जेम के अंदर काफी ट्रिकी होता है. पहले ई प्रोक्योरमेंट के टेंडर्स में क्या होता था, जितने भी पार्टिसिपेंट बिड में पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं वो सभी के सभी रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेशंस कर सकते थे अगर बिड टू रिवर्स ऑक्शन है. अभी जैम के अंदर क्लॉजेस चेंज है. जैम के अंदर क्या है कि जितने भी पार्टिसिपेंट ने बिड में पार्टिसिपेशंस किया है उसमें से 50% क्वालिफाइड बिडर्स ही रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेशंस कर सकते हैं. यानी आपको बिड के अंदर भी आपका एप्रोप्रिएट रेट डालना है तभी आप रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेशंस कर पाएंगे. एल्स आपको रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेशंस करने के लिए जैम की तरफ से इन्विटेशंस नहीं मिलेगा. ये कुछ एक टर्म्स हैं जो हर एक टेंडर्स में मेंशन्ड होती हैं. सबसे पहले EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये 100% रिफंडेबल होती है अगर आपको टेंडर्स अवार्ड नहीं होता है. तो अगर आपने EMD भरी है और आप टेंडर में पार्टिसिपेट किया है और टेंडर्स आपको अवार्ड हो गया है, बट किसी भी रीजन से टेंडर से अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो मे बी पॉसिबल कि आपकी EMD फॉरफिट हो सकती है. और अगर आप बिड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको टेंडर्स नहीं लगता है तो ये EMD आपको वापस रिफंड मिल जाती है. डॉक्यूमेंट कॉस्ट चार्जेबल होते हैं. इट कैन बी 0 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 5000 रुपीज, डिपेंड्स अपॉन द टेंडर साइज और डिपार्टमेंट. ये नॉन रिफंडेबल होता है. EMD जो होती है वो परसेंटेज में होती है. ये इट कैन बी 0, 1%, 2%, 2.5% ऑफ टेंडर वैल्यू. प्री बिड मीटिंग, हम टेंडर्स डॉक्यूमेंट देखते हैं एंड इफ वी फाउंड कि यार कुछ कंडीशंस इसके अंदर मेंशन्ड है जो मुझे समझ में नहीं आ रही और इट्स अ वेरी ट्रिकी और इट कैन बी एनीथिंग, या हम इसमें चेंज करवा सकते हैं बट टेंडर डॉक्यूमेंट में वो क्लैरिटी नहीं है. तो हर एक टेंडर्स के अंदर काफी बार देखा गया है कि वो लोग एक स्लॉट रखते हैं प्री बिड मीटिंग का.
In that pre-bid meeting, you can raise your query in front of department. आप उन अपने पॉइंट्स रख सकते हैं वहां पे. अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ ये पॉइंट वैलिड है, तो देयर वुड बी ए पॉसिबिलिटी वो उसका अमेंडमेंट निकालते हैं. बिड ओपनिंग डेट. बिड ओपनिंग डेट डिपार्टमेंट जिस दिन बिड ओपन करता है उस दिन की डेट होती है. BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी. इसका एक फॉर्मेट जनरली डिपार्टमेंट्स के द्वारा दिया जाता है जहां पे आपको सारे के सारे रेट जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने कहा है BOQ में मेंशन्ड है उस तरीके से रेट देने होते हैं. PQC, प्री क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको प्री क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया में अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं जो ये डिसाइड करेगी कि आप इस टेंडर्स में पार्टिसिपेंट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है. सो वी हैव टू मेक श्योर वी शुड नॉट मिस एनी कंडीशन मेंशन्ड इन द PQC क्राइटेरिया. DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. जनरली टेंडर्स में क्लास 3 का जो साइनिंग एंड इंक्रिप्शन का जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो एक मैंडेटरी होता है. जैम के अंदर DSC जरूरी नहीं है, बट एक नया अभी जैम के अंदर पॉलिसी आ रहा है. उस पॉलिसी के अंदर DSC के थ्रू उन लोगों को यूजर वैलिडेशंस करवाना पड़ेगा. सो वी के अगर फ्यूचर में जैम में ये आ जाता है तो कोई नई बात नहीं होगी. हाँ, अगर आप ई प्रोक्योरमेंट या दूसरे भी किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ई टेंडर में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो आपके पास में ये DSC होना जरूरी है. काफी कुछ एक डिपार्टमेंट में देखा ये भी गया है कि क्लास 2 का जो कॉम्बो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है वो भी काम आता था, बट अब क्लास 2 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नेशनल लेवल पे बंद हो चुका है. अब सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 का ही मिलता है. तो हमें क्लास 3 का ही DSC हमारे पास में होना चाहिए अगर हम ई बिड में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो. NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ये इसके अंदर ब्रीफ में मेंशन होता है किस तरह का टेंडर है, डिपार्टमेंट कौन सा है, EMDs क्या है. तो बेसिक चीजें इसके अंदर मेंशन होती है. दैट विल हेल्प यू ऑन इनिशियल लेवल वेदर यू शुड गो फॉर फर्दर प्रोसेस और नॉट. सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको भरना होता है जब आपको टेंडर्स अवार्ड हो जाता है, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ BG जो कि बैंक गारंटी होता है उसके फॉर्म में भरना होता है. पेनल्टी क्लॉजेस. पेनल्टी क्लॉजेस पर ध्यान हमारा जाना जरूरी होता है बिकॉज सपोज कीजिए किसी भी रीजन से आप किसी मटेरियल को गिवन टाइम पीरियड में नहीं दे पाए हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं. वहां पे डे वाइज पेनल्टी हो सकती है, वीक वाइज पेनल्टी हो सकती है, मंथ वाइज हो सकती है. सो पेनल्टी क्लॉज हर एक टेंडर में मेंशन होता है. तो यू हैव टू मेक श्योर या पेनल्टी क्लॉजेस सारे देख लीजिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सिमिलर टू दी PQC, कहीं पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कहीं पे PQC होते हैं. तो यू शुड बिड मतलब टेंडर ही हो गया. RA मतलब रिवर्स ऑक्शंस. ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं EMD एग्जम्पशंस के अंदर, डॉक्यूमेंट कॉस्ट एग्जम्पशंस के अंदर. आपने काफी टेंडर्स में देखा होगा कि वहां पे EMD मेंशन्ड होती है कि अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जम्पशंस मिलेगा, नहीं है तो आपको EMD और डॉक्यूमेंट कॉस्ट पे करना है. तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो MSME. अब MSME अपग्रेड हुआ उद्योग आधार कार्ड से और अब उद्योग आधार कार्ड जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से अपग्रेड हो चुका है. अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है और टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है कि ये सर्टिफिकेट होने से आपको EMD और डॉक्यूमेंट कॉस्ट में एग्जम्पशंस मिलेगा तो आपको वहां पे वो दोनों कॉस्ट जो है या वो दोनों जो अमाउंट है वो पे नहीं करना होता है. सिमिलर टू दी NSIC, MSME ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर को ही मिलते हैं. किसी भी रीसेलर्स को ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं. तो NSIC आपके पास में है तो भी आपको EMD और डॉक्यूमेंट कॉस्ट एग्जम्पशंस मिल जाता है. NSIC का एक और एडवांटेज देखा है, काफी टाइम क्या होता है कि कोई बड़ा बिड है, सपोज करिए एक बिड है जिसमें 1000 एयर कंडीशनर सप्लाई करने हैं. अब 1000 एयर कंडीशनर सप्लाई करने के लिए 10 लोगों ने बिड किया है. अब 10 लोगों ने जो बिड किया उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो L3 और L4 पे हैं और उनके पास NSIC है. L1 पे जो क्लाइंट है उसके पास NSIC है नहीं है, उसे कोई मायने नहीं रखता, वो L1 पे है तो उसको ऑर्डर्स मिलेगा. बट कुछ % ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क वो L3 और L4 को भी L1 के रेट पर मिल सकता है बिकॉज ही हैविंग दी NSIC सर्टिफिकेट. So that is the another advantage I have seen in if you having the NSIC certificate. Now we are moving on the topic best practice for the tender bidding.
फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू लेट यू नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. राइट वे में टेंडर सबमिशन करने से फायदे क्या होंगे? फर्स्ट, यू आर सेविंग योर टाइम. आप बहुत सारे टेंडर्स पे फोकस नहीं करते हुए राइट टेंडर्स पे फोकस, इट विल सेव योर टाइम. एप्पल अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे फ्रूट में से आपको ये पता चल जाता है कि एप्पल कौन सा है मेरे लिए, दैट आई शुड नॉट मिस. आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शंस एंड मैपिंग करने में आपको हेल्पफुल रहता है. ज्यादातर क्या होते हैं, हम लोग यही चीज देखते हैं कि भाई कौन सा टेंडर आया वो भर लो, बट वी हैव नेवर फोकस्ड कि मैंने ये 3 डिपार्टमेंट के टेंडर्स भर लिए हैं, ये 5 डिपार्टमेंट को मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है. इफ I'll try with this department, there would be a possibilities I will start to getting from this department as well. So my first suggestions, if you are doing already work with the government department, list out the name of these all the department, and then go and find out there are what more departments are available in your territory where you are looking for business. Is there any department where you have missed the opportunities? Focus on that department. As many you are working with many of the department, you are opening many of doors, so that will help you to mapping the department with your product. So you will recover from the mess department locations and you can go with the more products. So it will be help you to in this way. Now, first of all, for effective bidding, get relevant tenders with important parameters. You have to select, you have to check all below parameters to understand that you move further or not. ये 5 देखते ही आपको ये सोचना है कि आगे मुझे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. सबसे पहले कि वो आपके बिजनेस से रिलेवेंट होना चाहिए. उसके बाद आपको डिपार्टमेंट देखना है, जो हमने डिपार्टमेंट की लिस्ट बनाई है उन लिस्ट में से ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. टेरिटरी क्या है, ज्यादातर क्या होता है कि डिपार्टमेंट की लोकेशंस अलग हो सकती है एंड जहां आपको सप्लाई करना है वो लोकेशन डिफरेंट हो सकती है. सो यू हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे जिस डिपार्टमेंट ने सप्लाई करने के लिए जहां कहाँ है वहां मैं भेजने के लिए फिजिबल हूं कि नहीं हूं. इफ यू थिंक territory is fine for me, that is fine. Second, amount of tender. See, टेंडर्स में क्या होता है, एक बहुत क्लियर क्राइटेरिया है. जितना बड़ा टेंडर्स होगा उतना पीक्यूसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा स्ट्रांग होगा. अगर आपने आज तक बिड में पार्टिसिपेशन नहीं किया है एंड आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी है, लाइक योर प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ 10,000, 15,000, 20,000, और टेंडर्स कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का निकला हुआ है, तो देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटीज कि पीक्यूसी क्राइटेरिया में ये मेंशन हो कि आपके पास में सेम डिपार्टमेंट में या रिलेवेंट डिपार्टमेंट में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर वो वर्क एक्सपीरियंस है तभी आप वो टेंडर्स में आगे बढ़ सकते हैं. 95% केसेस में ऐसा होता है. अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो दिस इज माय सजेशंस, डोंट गो फॉर बिग टेंडर, अवॉइड इट. अमाउंट देख के उसको छोड़ देना चाहिए. हमारे लिए एक फिजिबल अमाउंट जो होती है छोटे टेंडर्स, ओपन टेंडर्स के अंदर, लाख 2 लाख 5 लाख अप टू दी 25 लाख. So select such kind of only tenders or ignore on initial level such big tenders, because उसके अंदर आप PQC में देखेंगे तो there would be a possibilities कि आप किसी ना किसी clauses में disqualify हो रहे होंगे. Then EMD और document cost, काफी टेंडर्स का EMD अमाउंट रहता है. अगर आपको लगता है आप EMD पे करना चाहते हैं तो आप वो बिड में फोकस कीजिए, और आपको लगता है कि नहीं मुझे EMD पे नहीं करना है तो अवॉइड दैट टेंडर. हाँ, बट यहाँ पे एक एग्जम्पशंस क्लॉज जरूर देख लीजिएगा. अगर EMD और डॉक्यूमेंट कॉस्ट में एग्जम्पशन है तो यू शुड नॉट मिस इफ इट्स रिलेवेंट टू यू एंड इट्स इन योर पैरामीटर्स, अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर्स. क्लोजिंग डेट ऑफ टेंडर, काफी बार क्या होता है हम पूरा टेंडर स्टडी कर लेते हैं एंड वी नो ये सारा प्रोसेस करने में डॉक्यूमेंटेशन इट टेक्स 3 टाइम 4 टाइम 5 डेज टाइम, बट क्लोजिंग डेट 2 दिन के बाद की है, तो उन टेंडर्स में मेहनत करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अगर इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड वर्क एज वेल कि आप किस तरीके का काम करते हैं. काफी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 1 घंटे में काम किया जा सकता है, काफी में ऐसा होता है कि मिनिमम 5 दिन लगते हैं. बट मैं यहाँ पे आपका एक जो आपकी जो नजर को वो बदलूंगा
हर एक डिपार्टमेंट में टेंडर भरने से पहले उस डिपार्टमेंट का वेंडर बनना बहुत जरूरी है, या उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है. एंड सम ऑफ द डिपार्टमेंट टेकिंग 24 hours टाइम, some department taking 40 hours time, some department taking the registrations process timing. So इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम होते हैं. अगर आप किसी भी बिड पार्टिसिपेशन में बिड में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और वहां पे क्लोजिंग डेट नजदीक की है और आप उस डिपार्टमेंट में वेंडर्स नहीं हैं, तो मेक श्योर उस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा. देन ओनली यू वर्क फर्दर फॉर दिस टेंडर. अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट अच्छा है, टेंडर अच्छा है, इस बार मैं मिस कर रहा हूं, तो आप उस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी उस डिपार्टमेंट से अगर टेंडर्स निकलता है तो आप अगेन उसको मिस ना करें. सो क्लोजिंग डेट सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे पास में कितना टाइम है इस बिड को प्रिपेयर करने के लिए, जिससे हम बिफोर द टाइम बिड को इजीली सबमिट कर सके. सो इस तरीके से इन पैरामीटर से आप लोगों को सबसे पहले राइट टेंडर सिलेक्ट कर लेना है. एक बार राइट टेंडर सिलेक्ट होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट का स्टडी करना है, एनालिसिस करना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है. सब ये चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस डिपार्टमेंट में, ये चेकलिस्ट क्लियर करनी है. डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे कभी कभी डिपार्टमेंट ने द्वारा मेक्स मेंशन की जाती है. सपोज कर लीजिए आप फैन मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड किसी डिपार्टमेंट ने टेंडर्स निकाला है कि फैन तो हमें चाहिए, बट वी आर लुकिंग फॉर दी फैन फॉर दिस ब्रांड ओनली. अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप उस ब्रांड के अगर मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आप कर सकते हैं, या उस ब्रांड के आप रीसेलर हैं तो आप कर सकते हैं. बट अगर आप वो ब्रांड में डील नहीं करते हैं तो वो बिड में आप पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं. बट अभी काफी टेंडर्स में ब्रांड्स एंड सिमिलर मेंशन होता है, तो ब्रांड्स एंड सिमिलर मेंशन है तो आप आराम से काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांड की जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको मैच करने रहते हैं. पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस स्टैंडर्ड्स के क्या हैं, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक टेंडर के लिए, प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टर्म कंडीशंस हो सकते हैं. ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि डिपार्टमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है. तो आप पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस चेक कर लीजिए कि वो आपको फिजिबल लग रही है. अगर इफ यू आर फीलिंग दिस ऑल आर द फिजिबल, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन इफ दे आर प्रोवाइडिंग इन इन गिविंग टाइम पीरियड, तो आप आगे बढ़िए. काफी टेंडर्स में क्या होता है कि आपको पेमेंट टर्म्स के साथ साथ बताया जाता है कि आपको बीजी अमाउंट कब मिलेगा, after 1 month, 2 months, 6 months, or a year. So if you are okay with this condition, then go ahead. Else think about that. There would be a possibility कि payment terms conditions आपको feasible ना हो. EMD or document exemptions. As I told you earlier, if you are okay to bid with EMD, then there is no matter. अगर आप नहीं करना चाहते हैं, then you have to think on the thing. Third, get prepared document. Once you understand पिछली सारी प्रोसेस से आपने ये सिलेक्ट समझ लिया कि बिड में आप पार्टिसिपेशन करना चाहते, तो वी हैव सिलेक्टेड द टीम, सिलेक्टेड द बिड. नाउ वी आर प्लानिंग हाउ टू सबमिट द टेंडर्स. सो व्हाट वी नीड टू डू, when we started working with the government, we have to create one file or folder where we have to keep all the documents from the day one, because many of the documents are demanding in every tender. So if you are making a file and putting all the papers together at a one place, it will save your time to collect all the documents again and again. So make company documents file. Understand that in tender, does they demanded IOC certificate, solvency certificate, or like that. Solvency is generally for the work contracts. ISO हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट हाँ अगर डिपार्टमेंट ने डिमांड किया है देन वी हैव टू गिव. अगर उन्होंने कहा नहीं मेंशन किया है देन इट्स फाइन. इफ समवन टेल मी नितिन यार ISO सर्टिफिकेट मांगा तो नहीं है बट आई हैव, तो आई ऑलवेज यूज टू से give the document what you have, that will create the star in your profile. There is no problem if they are not demanding and you are providing, it will always give you the value added thing. So whatever the document or certificate you having, just give it. They can be demanded some reports, lab reports like that.
EMD किस तरीके से डिमांड किया गया, वी हैव टू सी आइदर दे हैव आस्क्ड इन DD फॉर्म और दे हैव they told us to deposit in NEFT form, so this way. बट मेक श्योर जब भी ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो हर एक टेंडर्स के अंदर जो पोर्टल होता है जिस पे आपको सबमिट करना होता है, दे हैव मेंशन सम फॉर्मेट्स or sizes. So we have to upload this document in such format and such sizes only, else they are, when you are going to upload this document in various another format or other size, they will not accept it. It will create the headache for you. So generally they are asking for the PDF format. Be competitive with pricing. In many tenders or in many of the department, they are also giving the tender results. अगर आप उनकी साइट पे थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको टेंडर अवॉर्डेड नोटिस दिखाई देगा. टेंडर अवॉर्डेड नोटिस का मतलब ये हो गया कि पास्ट में ये जो टेंडर्स निकला था वो जिस पार्टी को मिला है वो किस रेट पे मिला है. तो आपको अपने मार्केट में तो आप रेट देख ही रहे हैं, बट साथ ही साथ किस रेट पे पास्ट में बिड गया है वो टेंडर रिजल्ट से देख लीजिए आप. तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको अब कौन सा रेट डालना चाहिए बिड पार्टिसिपेशन के टाइम पे. बट यस, मेक श्योर एट दैट टाइम व्हाट आर द रॉ मटेरियल चार्जेस. बिकॉज क्या होता है कि हम उस टाइम पे किस रेट पे बिड गया है वो तो देखते हैं, बट उस टाइम के ऊपर मटेरियल के कॉस्ट क्या रहे होंगे वो देखना रह जाता है. तो वी आर समटाइम थिंकिंग लाइक दैट कि यार इतने कम रेट में चला गया, मैं कैसे दूंगा. देयर वुड बी पॉसिबिलिटीज at that time material cost can be low, so we have to map in both way. So just make sure about that and be competitive with pricing. Fourth process which is very important process, because यहाँ आपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए हैं, चीजें कर ली हैं, अगर यहाँ पे आके आप बिड नहीं करते हैं तो यू आर लूजिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम. सो मेक श्योर आपके पास में क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए. जैम पे जरूरी अभी के लिए नहीं है बट फ्यूचर में आ सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड विद द क्लास 3 सर्टिफिकेट. वेंडर रजिस्ट्रेशन पेड और फ्री. In some of the department, if you are participating, they are chargeable. Example, if you want to work in Gujarat and there is a tender which is published on nprocure.com, then you have to pay near about 4,100 plus GST amount, because that is a chargeable portal. So there are some departments or some portal which are chargeable. That is up to you whether you want to become the paid member of that department or not. If you want to do, then go ahead. If you want, no यार एक टेंडर के लिए कौन अमाउंट दें, then forget this bit. Create account. So as I told you earlier, if you are new with the department, you have to be vendor of such department, so you have to create your account over there. You have to upload all document, and if you feel any problem, always there is a phone number or other detail for communication mentioning in the tender document. So you can take the follow up with the department for any of the concern. Many of the departments are very cooperative, very supportive, and they are ready to understand your concern and give you the solutions. So don't miss the opportunities. If you are not found any of the thing is not understandable, you just call the department and they will assist you how to go ahead. Now, bid submission. In many of tenders we have seen, they are saying upload the document online, but courier us as well. So if these all the things are always mentioned in the tender document, तो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा जाए एंड ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशंस के लिए कहा जाए. तो आपको इस तरीके से करना है. अब ऑफलाइन बिड के अंदर क्या होता है, आपका 1 पैकेट और 2 पैकेट सिस्टम होता है. इफ दे आर डिमांडिंग 1 पैकेट, देन आप लोगों को जो फॉर्मेट दिया गया है लाइक फॉर द सीक्वेंसेस, तो उस सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट को आपको मैनेज करके डिपार्टमेंट में सबमिट करने हैं. अगर 2 पैकेट सिस्टम कहा गया है तो टेक्निकल बिड का और फाइनेंशियल बिड का यानी कमर्शियल बिड का अलग अलग पैकेट बनाना है. मेक श्योर टेक proper envelope, big size envelope, that and don't fold that envelope.
उसके ऊपर आपको व्हाइट पेपर के ऊपर प्रॉपरली जिस क्लाइंट को आपको ये बिड पैकेट भेजना है उसका प्रॉपर डिटेल विथ टेंडर नंबर आपको वो सबमिट करना है। एंड टेंडर की एंड डेट से पहले ये डॉक्यूमेंट का पैकेट उनके पास पहुंच जाना चाहिए। कुछ एक टेंडर्स में वो लोग ये मेंशन भी करते हैं कि आपको किसके थ्रू भेजना है, तो हमको उसी कुरियर के थ्रू या उसी सर्विस के थ्रू भेजना होता है। तो वी हैव टू मेक श्योर इट्स अ 1 पैकेट सिस्टम और 2 पैकेट सिस्टम, 2 पैकेट सिस्टम या 1 पैकेट सिस्टम जो भी है, तो उसके लिए अनदर प्रोसेस क्या है एंड वी हैव टू फॉलो दैट। So guys, these are the 5 process that we need to follow. It's become it seems some lengthy process, some tricky process, but believe me, अगर आप इसको properly एक बार understand कर लेते हैं, समझ लेते हैं और उसका एक पेपर पे सिस्टम बना के रख लेते हैं, तो it will not take a big time of you. सबसे इंपॉर्टेंट बिड सिलेक्शंस के लिए ये है कि आप उसके इनिशियल थिंग, जैसे कि टेंडर केस चेस का है, उसके बाद में कौन सी टेरिटरी है, टेंडर्स की एंड डेट क्या है, टेंडर्स का अमाउंट क्या है, ये 4 चीज देखने से आपको ये डिसाइड कर लेना है कि भाई मुझे आगे ये बिड में पार्टिसिपेशन करना है कि नहीं करना है। ये चारों में से भी अगर आपको एक भी लगता है कि यार नहीं सुटेबल है, तो वो टेंडर्स को छोड़ दीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, और आपने जिस मैपिंग लिस्ट के अंदर बनाया है दूसरा टेंडर्स ढूंढिए, बिकॉज सेम प्रोडक्ट के लिए n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है। एक बार आपने टेंडर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको यह डिसाइड करना है कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पीक्यूसी क्राइटेरिया क्या है, डिपार्टमेंट ने डिमांड क्या किया है, वो चीज आप प्रॉपरली समझ लीजिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट दोनों चीज आपको प्रॉपर लगती है, देन गो फॉर द पेमेंट टर्म्स एंड व्हाट आर दी पेनल्टी क्लॉजेस। ये चीजें आपको टेंडर्स भरना है या नहीं भरना है वो डिसाइड करने में हेल्प करेगी। डिसाइड करने के बाद में आप देख लीजिए कि ई टेंडर है, डिजिटल सिग्नेचर है या जैम का टेंडर है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आपको पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना है और देन आपको मूव करना है उस चीज को लेके। उसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सहायता से आपको डिपार्टमेंट में वेंडर बनना है। वेंडर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए, एंड जो बीओक्यू दिया हुआ है वो बीओक्यू में रेट सबमिट कर दीजिए। जनरली बिड के अंदर आपको इंक्लूडिंग एफओआर और इंक्लूडिंग टैक्स दिया होता है, फिर भी बीओक्यू के अंदर जो फॉर्मेट दिया हुआ है दैट इज द फाइनल। नाउ सब चीज रेडी है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 1 पैकेट सिस्टम है, 2 पैकेट सिस्टम है। 1 पैकेट सिस्टम है तो एक ही पैकेट में टेक्निकल एंड कमर्शियल, 2 पैकेट है तो अलग अलग टेक्निकल और कमर्शियल के लिए। और कहीं पे भी दिक्कत है डॉक्यूमेंट के अंदर डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन डिटेल मेंशन होती है, कॉल देम एंड अंडरस्टैंड। अगर आपको स्पेसिफिकेशंस डिपार्टमेंट ने जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन दिए हैं उसमें भी लगता है कि यार कुछ प्लस माइनस हो सकता है, तो आप डिपार्टमेंट की जो प्री बिड मीटिंग होती है, प्री बिड मीटिंग को अटेंड कीजिए, अपने पॉइंट्स को वहां रखिए। देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटीज, अगर आपका पॉइंट वैलिड है तो वो टेंडर का अमेंडमेंट निकल सकता है। सो अगेन रिव्यू कि कौन से टेंडर्स एक बिगिनिंग लेवल की कंपनी को अटेंड करने चाहिए और कौन से लेवल के टेंडर्स छोड़ देने चाहिए। दिस इज जस्ट एज फॉर माइंड, मैं मेरे तरीके से मेरी समझ के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। इफ यू थिंक कि भाई आप बड़े टेंडर्स भी भर सकते हैं, आपने पहले काम किया है, पहले का एक्सपीरियंस है, बट राइट नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, दैट इज योर चॉइस। On initial level, you should go only for the small amount of tenders, understand the process, understand the documentations, understand how it works system. So it will be helpful you to get the small amount of tenders. So small amount of tenders पे आप छोटे पहले वर्कआउट कीजिए, big amount of tenders को आप छोड़िए। प्राइमरी प्रोडक्ट्स, हर एक कंपनी के पास में कुछ एक प्रोडक्ट फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होती है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होती है और कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट होती है। तो टेंडरिंग में फोकस करने के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। लोकल सप्लाई, जहां तक आपकी रीच पहुंच सकती है वहीं के लिए आप टारगेट कीजिए। एंड
ओपन टेंडर्स में पार्टिसिपेशन कीजिए, नए हैं तो क्लोज्ड लिमिटेड टेंडर्स या नेगोशिएटेड टेंडर्स में पार्टिसिपेशन करके वी आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम. If you are new, go for the only and openly open tenders. So these are the some portal that I have mentioned here कि जहां पे 50% से 60% टेंडर्स आप लोगों के कवर हो जाते हैं. gem.gov.in, we all knows. eprocure.gov.in, this is for the सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर्स. तकरीबन 26,000 से ज्यादा टेंडर्स निकलते हैं. लास्ट ईयर के मैं बात करूं तो लाखों की संख्या में बहुत अच्छा अमाउंट के टेंडर्स निकले हैं. कहीं नहीं हो तो आप eprocure.gov.in पे जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वहां के जो भी छोटे टेंडर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन करके एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा. एंड प्रोक्योर इज फॉर द गुजरात गवर्नमेंट टेंडर्स. अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो यू हैव टू पेड, बट माय सजेशंस, इफ यू फाइंड एनी ऑफ द टेंडर्स वेयर यू वांट टू बिड, then only register on nprocure, else it will waste your time. So this is the one case study that I had developed for you that will help you to understand the various terms what we have discussed and help you to identify whether we should go in these tenders or not. So here we can say टेंडर टाइप में ओपन टेंडर मेंशन है. टेंडर्स की कैटेगरी गुड्स की है. अगर आप सिर्फ गुड्स के लिए काम करना चाहते हो ये आपके लिए ओपन अच्छा टेंडर्स हैं. ये बहुत ओल्ड टेंडर्स में दिखा रहा हूं. दिस इज जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस. ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में बात की है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ओडिशा ने ये टेंडर्स निकाला हुआ है. नंबर ऑफ कवर्स ये 2 बताया है, यानी ये बताया है कि आपको 2 बिड सिस्टम है, यानी आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट भी करने हैं और उसमें भी 2 पैकेट सिस्टम है ये. तो इस तरीके से सारी चीजें मेंशन है. यहाँ पे आपको कवर इंफॉर्मेशन दी है कि कवर 1 में क्या डालना है. तो कवर 1 में बताया है आपको पीक्यूसी क्राइटेरिया और टेक्निकल बिड डालनी है. कवर 2 में फाइनेंशियल बिड डालनी है. पेमेंट जो ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट बताया गया है. सेकेंड, इस तरीके से ईएमडी के डिटेल्स हैं. अगर ईएमडी देखें तो 14,430 बताई है. टेंडर वैल्यू आप देख सकते हैं 7,21,500 है. तो तकरीबन 2% उसका ईएमडी वैल्यू है. ईएमडी एग्जम्पशंस अगर है तो यहाँ पे पास में यस लिखा हुआ है, यानी अगर इसके अंदर एग्जम्पशंस है तो इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ने सर्टिफिकेट्स बताए हैं वो सर्टिफिकेट्स में कोई भी अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आपको ईएमडी में एग्जम्पशंस मिल जाएगा. डॉक्यूमेंट कॉस्ट यहाँ पे टेंडर फीस डॉक्यूमेंट कॉस्ट दोनों सेम होता है. यहाँ पे उसका कोई चार्जेस नहीं है. ईएमडी भी 0 हो सकता है. कुछ एक टेंडर्स में ईएमडी 0 होता है. तो ईएमडी 0 हो सकता है. डॉक्यूमेंट कॉस्ट तो हम 0 देख ही रहे हैं. तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे बताई गई है. कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 7,21,500 का ये टेंडर्स हैं बताया है. प्री बिड मीटिंग एड्रेस नहीं है. प्री बिड मीटिंग इस टेंडर्स के लिए उन लोगों ने प्री बिड मीटिंग को नहा कहा गया हुआ है, यानी अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी है तो आपको फोन करके क्लियर करना रहेगा. टेंडर्स की जो स्पेसिफिक डेट्स होती है वो डेट्स सारे के सारे यहाँ पे मेंशन की हुई है कि बिड ओपनिंग डेट कौन सी है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड डेट कौन सी है, क्लेरिफिकेशन डेट. अगर वहां पे प्री बिड मीटिंग होती तो क्लेरिफिकेशंस का एंड डेट भी दिया होता है यहाँ पे. डॉक्यूमेंट बिड सबमिशन स्टार्ट डेट कौन सी है, बिड सबमिशन की एंड डेट कौन सी है, इन लास्ट बिड जो डेट है वो यहाँ वाली मेंशन होती है. जनरली अगर आप ई प्रोक्योर की साइट्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड एज जिप फाइल करने पर जितने भी ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे दिए हुए उसकी पूरी जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है आपके सिस्टम के अंदर. फिर उसको आप अनजिप करके सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं. तो इस तरीके से कोई भी टेंडर्स को आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं. फिर डॉक्यूमेंट्स में जाके आप सारे पीक्यूसी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजें समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं. So guys, I just want to say government is becoming transparent than ever before. पहले बहुत सारे मिथ थे, सेटिंग से ही काम होता है, टेंडर्स लगते नहीं है, पेमेंट्स आते नहीं है, बट बिलीव मी अब सब ट्रांसपेरेंट हो चुका है. बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, काफी लोग कर रहे हैं. पर्सनल एक्सपीरियंस को अभी तक हम लोग 15,000 से ज्यादा टेंडर्स भर चुके हैं. काफी लोग काम कर रहे हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया. हजारों करोड़ों की अमाउंट में लोग टेंडर्स ले रहे हैं और अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा रहे हैं. अगर वो बढ़ा सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. सो आई जस्ट वांट टू से जस्ट बिड द टेंडर्स, गेट द एक्सपीरियंस, डोंट बिलीव द अदर्स, just feel the thing and bid the tenders. Thank you.
Yes, we are open for the question answer, sir. Excellent, Nitin ji. Yeah, excellent. Thank you so much, sir. बहुत Thank you अच्छा. so much. So now, participants, one by one, you can raise your question on the chart. So, Vikas Mohta ji has posted a question. What is reverse auction? Can you explain in detail? Yes. सी रिवर्स ऑक्शंस का मतलब ये होता है कि इनिशियली जब बिड हुआ, बिड के अंदर आपने एक रेट सबमिट किया, रेट सबमिट करने के बाद में रिवर्स ऑक्शन मतलब अपन सपोज कर लो कि लैपटॉप का टेंडर निकला हुआ है एंड लैपटॉप के टेंडर्स में आपने रेट कोट किया है 50,000 रुपए, बहुत सारे दूसरे भी बिडर्स है, किसी ने 50,000 किया है, 40,000 किया है, 30,000 किया है या 80,000 किया है। अब रिवर्स ऑक्शन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे लाइव ऑक्शनिंग होता है, यानी आपने जो रेट डाला है अब उससे कम रेट आपको डालना है। आपने पहले 50,000 डाला था, किसी ने 40 डाला था, तो डिपार्टमेंट लोएस्ट रेट को पकड़ के आपको लाइव बीड ओपन कर देता है। सपोज कीजिए लाइव बीड 30,000 रुपए है, अब वहां पे एक मेंशन किया होगा कि इतने परसेंटेज में मिनिमम आपको रेट रेशियो में कम करना है, तो उस रेशियो में जैसे ही आप कम रेट डालेंगे तो आप L1 पर आ जाएंगे। अब ये पूरी रिवर्स ऑक्शन प्रोसेस चलती रहती है, जिसने लास्ट में सबसे कम रेट डाला टेंडर्स उस पार्टी को मिल जाता है। तो इस तरीके से रिवर्स ऑक्शन वर्क करता है। Great. Sir, there is another question that link there manufacturer of link pen, and but mostly the tenders are for the entire stationery range. So how can they found suitable tender only for pens? यस, सो इसके अंदर क्या होता है कि वी हैव टू स्टडी दी होल दी टेंडर, वी हैव टू गो एंड स्टडी दी टेंडर्स। कुछ एक टेंडर्स में होता है इफ दैट इज अ बंच टेंडर, if it's a bunch tender तो definitely we have to submit for all the tenders, but if there is a tenders for specific कि अगर आप उसके अंदर 10 आइटम दिए हुए हैं बट अगर आप पेन देना चाहते हैं तो पेन के लिए भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, देन इट इज फाइन। बट स्पेसिफिकली 10 के पेन के टेंडर्स डेफिनेटली थोड़े कम क्वांटिटी में निकलते हैं, बट फॉर यू आई विल सजेस्ट जेम पोर्टल, बिकॉज जैम के ऊपर आप अपने जितने भी पेन है वो अपलोड कर सकते हैं, एंड इफ डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड ओनली पेन दे कैन गिव यू द डायरेक्ट परचेज ऑर्डर्स। सो इंस्टेड ऑफ द another more tenders of e-procurement all, I will suggest you go for the jam. That would be a wonderful platform for you, and there would be higher chances to get the direct orders from jam as well. Another questions from Navanita ji. What is package system? Nabamiti ji, packet system I have mentioned, this is a packet system like jab when you have to upload the tender document, and offline also you have to courier the document, that is a packet system. So packet system can be a single packet system or two packet system. Single packet system है तो we have to हम एक ही पैकेट के अंदर दोनों ही टेक्निकल और कमर्शियल डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। टू पैकेट होता है तो टेक्निकल का अलग पैकेट बनता है और कमर्शियल डॉक्यूमेंट का अलग बनता है, एंड वो दोनों पैकेट को बना के हमें एक पैकेट के अंदर डालना होता है और उसे कुरियर कर देना होता है डिपार्टमेंट को। वो ऑफलाइन टेंडर्स के डॉक्यूमेंट सबमिशंस के लिए होता है। Another question. Yes, sir. MSME or NSIC registered bidders are sometimes offered to supply to match the L1 rate, even if they are L3 and L4. So is it mandatory for the authority to offer such bidders, or is it just a convention? It's just conventional, it's not mandatory. अगर आपको लगता है आप L1 रेट पे देना चाहते हैं देन इट्स फाइन, इफ यू डोंट वांट तो अगर आप L1 रेट पे नहीं दे सकते तो रिफ्यूज दैट टेंडर, आप रिफ्यूज कर सकते हैं उसको।
डिपार्टमेंट की तरफ से एक ये होता है कि if there is a participant who having the NSIC certificate, तो this is a part of process कि at least they inform the NSIC holder whether they want to take the order on L1 price or not. If you are okay, then fine. But यहाँ पे कभी कभी tricky भी होता है. Tricky in the sense L1 sometimes is not accepting the order. Then they are coming to the L2 and L3. But again, this is just they can request. They cannot, forcefully tell you that you have to submit the product, or you have to send us the, or you have to take the PO on the L1 price. It's optional, so there is no any mandatory like that. Yes, Sanjeev There's ji. another question Mhm. that there's a manufacturer of leather goods. So how can they know the exact tender for leather goods? So it is very easy. There is an n number of portals are available where you can search the tenders with your business keyword. Even if you go on Gem, there are lots of tender mentioned, but they have also created the filter over there. And in that filter, if you write your keyword, I can say in your language your product name, then all the relevant tenders will be visible for you. But it can be possible there would be some irrelevant tenders as well. So you have to study one by one all the tenders and identify the right tenders for you. But there are always filters are available to understand this tender approaches available for your product. Hello. Yes, Sanjeev ji. Yeah, has the chain opened up the honest money payment option? In the sense, what I'm not understanding the clear question. Yeah, I also failed to understand. Yes. So can you please, the Yes. person raising the question can clearly clarify more? Definitely. See, in GEM, almost below 5 lakh rupees, they are not charging any EMD amount, but more than 5 lakh rupees, there would be a possibilities that they can demand you the EMD. And this EMD can be from 0 rupees to 10% of tender value. But in many of the tender, we have seen if you are having the OEM panel, that we can say the original equipment manufacturers panel dashboard, then they are giving the exemptions. And as you know that OEM panel can be done only either you are doing the vendor assessment with the QCI process, or you having the NSIC or BIS certificate. So there would be there is always exemptions policies are there, but yes, they can demand in certain tenders EMD amount. There is another, Nitinji, can you please briefly categorize creation and brand registration in GEM portal? It's a huge topic, brand assessment and category creation, na? Yeah. Yes. If your categories Just a brief touch. Yes. If the category is available on GEM, then definitely you can upload your product in this in given category. If it's not available, then it's up to the GEM department. You can request to create the category, but it's up to the GEM department. Are they approving or not? If they approve, definitely you can find the category in your panel. Brand registrations, if you it requires trademark certificate. It's a called a brand assessment process in GEM portal. There is another sections available in GEM portal where you have to upload your trademark certificate and request GEM to upload to approve this brand for your product. So it based on mainly trademark certificate or registration certificate. If you are a reseller, then you have to take approval from your principal
manufacturers, or you have to take jam code from the principal manufacturers. And if they are giving the jam code, and you can request for such brand to the jam, if they found that you have applied with the right jam code, there would be possibility your brand can be registered. Okay. Yeah. Another question. There's a do the people have the right to ask for comparative statement once the tender is open? They already mentioned in any tenders you can found tender type, they mentioned this is open tender or limited tender. But yes, No, you didn't understand the question. Hmm. I said the question is that the comparative rates are available. Do we have Say for L1 and See, yes, we can ask in certain department that we would like to have the past tender results. If in fact, if you visit the site of the relevant department or relevant portal, you can find itself the various tender results are available on that site. So from there, you can easily collect the tender results. okay. So if someone want to raise question, either post it in the chat box or raise your hand. Sir, we have a few hands raised. Please, Bolun. Nabomita Ghosh, allowed to talk? Yes, Nabomita ji, please go ahead. Mridul ji, please go ahead. You can ask the question. पुनीत कयाल के अनम्यूट करूं. अच्छा. पुनीत जी, raise your question. Yeah, hi. Hello. Am I allowed to ask a question again? Please go ahead. So basically, as you just gave me some idea that I have already uploaded my brand as in Link Pen's product as a catalog in the GEM portal. But I'm just wondering and waiting and watching that how do I get a breakthrough in getting some business opportunity, because will it operate like a e-commerce site that someone sees the products and asks us for a query? How will it tactically work out like? Yes, definitely it's kind of e-commerce portal. You are the seller and departments are the buyers. All the government, semi-government, PSU departments are the buyer. So this is a clearly working on the e-commerce module only. You are having your seller panel and department having their buyer panel. Once your product uploaded over there, it will be visible to the departments. Suppose you are the manufacturers of the, you have mentioned industrial supplier, like any of the machine, you are a machine supplier, and if department is want to procure that machine, they search the searching section with the relevant machine name, and they can have a list of all the supplier of that machine, either they are manufacturers or reseller, anyone, and they can compare their self regarding the locations, regarding the rate prices, quality, and various specifications. If they found they are matching with the requirement, then they can directly orders. They can directly orders up to the 25,000 rupees, up to the 5 lakh rupees. They can select the 3 vendors and compare their rates with specification, and they can found the least price, and they can directly order to the seller. Okay. So in that case, it will be like a wait and watch scenario, and the prices that I've uploaded are the basic prices. मतलब obviously मुझे नहीं पता ना कितना quantity क्या है, तो मैंने एक बस एक basic सा एक margin वो कर दिया. नहीं पुनीत जी, ऐसा मत कीजिएगा.
it will give you the big loss. See, whenever you are uploading the product, there is always available that you can mention the MOQ. ठीक है, Okay. आप मिनिमम साइज ऑफ क्वांटिटी वहां मेंशन कर सकते हैं. So against that minimum size of quantity, you mentioned your rate. And make sure that you are uploading with the MRP prices, because if you are putting the basic rates and if you have to increase that, it will become difficult for you. And if Okay. they are putting the orders, then you have to supply with the given rate, including FOR and the taxes. And if you are declined that order, your rating will be impacted. So make sure whenever you are uploading the product, that would be properly systematically with mentioning all the specifications along with the rate, along with the delivery locations, that you can find out when you are uploading the product in the system. Okay. Hello. Okay. So Sir, I would like it's to ask a better question. if I Just a quote a moment. higher price. Yeah. Let Mr. Sanganira finish first. Yes, okay. ओके सो मतलब वही था कि थोड़ा सा मैंने अगर हायर प्राइस दे दिया, बिकॉज मुझे एक्चुअली पता नहीं है ना किस तरह से क्या क्वांटिटी आने वाला है. मैं सप्लाई कर सकता हूँ, वो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इट्स फाइन. सी, अगर आपने हायर रेट दिया है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डायरेक्ट ऑर्डर आने के चांसेस कम है. चांसेस लूज हुए. सो इट्स लाइक डायलेमा कैश 22 टाइप सिचुएशन. एब्सोल्युटली राइट सर. बट कोई चैनल नहीं है जिससे कि मुझे पता चल जाए कि भाई एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, फिर केस स्पेसिफिक मैं उनको कोट कर सी, सकूं. दुकान है ये, ऑनलाइन हम दुकान खोल रहे हैं, जितने प्रोडक्ट डालिए कोई मना नहीं कर रहा है आपको. ये हमें खाली दुकान देती है. अब आप अपनी ऑफिस में कितने भी प्रोडक्ट रखते हैं ना, दैट डजंट मैटर. सो यूज कीजिए. यहाँ पे तो आपके पास अन्य अवेलेबल अनलिमिटेड स्पेसेस हैं. ओके 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 ओके. थैंक यू सो मच फॉर द मोस्ट डिटेल वेलकम सर, मोस्ट वेलकम. आई अप्रिशिएट. Yeah, Puneet ji. Puneet क्या हाल? सर यस सर, गुड आफ्टरनून. सर मेरा ये बोलना था, एक्चुअली वी आर resellers of industrial raw materials, and we have been participating in tenders since a very long time, and currently like we are also participating on GEM, but in few tenders like we are facing the issue as we are authorized dealers of different manufacturers, and our manufacturers are not registered on GEM, and because of that we are unable to participate in the tenders, as like our manufacturers, they do not have the GEM code. So like we are an indigenous supplier, but since we do not have the GEM code from the manufacturer, like it shows that local vendors are not allowed to participate in, like vendors are not allowed to participate in tenders below 200 crores foreign like something like that. But we are resellers and Indian suppliers and are approved suppliers to that customer. So Samir ji, right? Or Puneet ji? Puneet. Puneet I'm ji. Puneet. So Puneet ji, your manufacturer is belonging from out of India, right? No, they are from India only, but they are not registered on GEM because they are not interested in the government business. They have appointed us to do the business for the government. See, there are some categories available. See, every products are based out Q1, Q2, Q3 or Q4. In this also they have mentioned some category where only manufacturers or authorized reseller from manufacturers are allowed to bid participation. Correct. So it will be always in favor of the department. If department demanding only and only registered resellers can supply, then we are helpless. We only have to forcefully say to the our vendor that do allow us to register on behalf of your company, so we can easily participate in tenders. So, but sir, we have discussed with the like with the departments who bring out tender. They say that there is no option of unregistered resellers. If there are options for unregistered resellers, then they can take out the tenders accordingly. But they are short of choices. Like it's been very much narrowed down, and ultimately, what is happening? The resellers are discouraged as being like one of the major provider in the economy, and we are not getting, like we are losing the opportunity of business. So पुनीत जी, मैं जहां तक यह समझता हूं,
अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो टेंडर्स निकला है तो उसके लिए वेरियस ब्रांड्स को वो अलाउड किया Correct. होगा, एक ही ब्रांड के लिए नहीं होगा. सो नहीं, एक ही ब्रांड के लिए नहीं है, उसमें मतलब कि स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, जो भी वो स्पेसिफिकेशन मैच करेगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है. राइट. लेकिन सिंस ओईएम नहीं है तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं. सी वो मैं आपको पुण्य जी एक ही सजेशंस दूंगा इसके अंदर. देखिए यहाँ पे अभी एक चीज बहुत देखी हम लोगों ने कि जेम से अगर हम कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो जेम डिपार्टमेंट के पास जाता है, दोनों में कहीं पे भी कम्युनिकेशंस गैप होता है तो बिजनेस लूज जो भी है वो मैन्युफैक्चर या रीसेलर करता है. करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है, या तो आप अपने मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स के लिए भाई तू रजिस्टर कर, या फिर आप मैन्युफैक्चरर्स जो सेम प्रोडक्ट दे सकता है ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को पकड़िए जो आपको जेम के लिए अलाउड कर सकता है. बिकॉज यहाँ पे जेम के अंदर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, बट अप्रूवल आने में टाइम लग सकता है. अब वो टाइम के कारण आप अपना बिजनेस लॉस कर सकते हैं. सर हम जेम आने के पहले आज तक अपना बिजनेस कल लूज नहीं किए थे, तो बट हाउ डू वी कंसीडर दैट कि जेम इज अ फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर अस और अ डिस्करेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर अस? सी दैट इज द फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बट दिस इज अ स्पेसिफिक टेक ओरिएंटेड. अब हर एक टेक को अगर सपोर्टिव बनाना है तो कुछ ना कुछ क्लॉजेस लगाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे एज अ वेंडर ऑल्सो दे हैव टू बी रेडी विथ चेंज. अगर हम चेंज के साथ में चेंज नहीं आएंगे ना तो डेफिनेटली वी हैव टू बी रेडी टू लूज द बिजनेसेस. ठीक है सर, इट कैन बी एन आर्गुमेंटेटिव टॉपिक अबाउट दिस, बट ठीक Yes, है, yes. आई गेट योर पॉइंट. Yeah. So, any more question? Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, Mr. Rao. Yeah, I'm from Utkarsh India Limited, कोलकाता सर. सर हम लोग पाइप मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील पाइप. जी. तो हम लोग रिसेंट रेगुलर वेंडर ऑफ एनटीपीसी ऑल्सो. अभी रिसेंटली बिड पार्टिसिपेशन में जो हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है सर, जैसे कि कोई बिड में मैंने पार्टिसिपेट किया स्पेसिफिकेशन देख के, तो सडनली मैं देखता हूँ सबमिट करने के बाद वो बिड एक्सटेंड हो जाता है और स्पेसिफिकेशन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है. तो उसके बाद जैसे मैं कस्टमर केयर में फोन करता हूँ पूछने के लिए कि मैं इसको विड्रॉ करके रिसबमिट कर सकता हूँ कि नहीं, वो लोग कर तो सकते हैं बट आपका लाइफ टाइम में आपको 3 बार ही अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, 3 बार खत्म फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा. तो लाइक सर हम लोग भी वी आर लाइक वेरी स्केर्ड, लाइक हम लोग किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहते हैं. तो क्या सर ये सही में क्या 3 बार ही हम लोग को मौका मिलता है बिड विड्रॉ करने? यस सर, ये लिमिटेड टाइम पीरियड होता है एक्सेस उस चीज के अंदर. सो दैट इज 100% राइट. बट हाँ, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट को एक लेटर कर सकते हैं कि वी आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ बिड एक्सटेंशंस. अच्छा, तो ये कंसिडर किया जाता है सर? यस एब्सोल्युटली. बिकॉज क्या हो रहा है कि आप रेट एक्सटेंशन, बिड एक्सटेंशन के कारण मार्केट में वैल्यू प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, उसके कारण आप बिड्स के रेट चेंज कर रहे हैं, ना कि आप बिड क्लोज होने से पहले 2 बार चेंज कर रहे हैं. ओके. और एक चीज पूछना है सर मुझे, जैसे कि जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं जेम पोर्टल में, उसमें कांटेक्ट पर्सन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है. जैसे कि मैं उसको कांटेक्ट करना चाहता हूँ कोई भी क्लैरिफिकेशन के लिए तो 2 दिन 3 दिन का टाइम देता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अगर मिस कर जाता हूँ वो टाइम तो उसके बाद और कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं रहता है. तो सर ये थोड़ा मुझे लगता है चेंजेस लाना चाहिए, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो भी बायर है. ईमेल आईडी या जेम के ऊपर एक टिकट जनरेशन का सिस्टम अवेलेबल है. इफ यू थिंक एनी ऑफ द चेंज रिक्वायर्ड और आपको लगता है ये चीज मिसिंग है वगैरह है, तो डेफिनेटली यू कॉल टू द जेम एंड जनरेट द टिकट, एंड दे आर ऑलवेज इन गिविंग द कॉल इफ यू आर जनरेटिंग द टिकट. तो यू शुड रेज योर कंसर्न. ओके. तो सर कई बार ऐसा हुआ है, जैसे हम लोग एनटीपीसी का रेगुलर सप्लायर है, लास्ट 7-8 साल 10 साल से हम लोग सप्लाई करते हैं, तो आदमी के साथ हम लोग का रेफरेंस हो गया है, काफी लोकेशन देख के समझ में आता है कौन कंसर्न पर्सन है, तो हम लोग उसको फॉलो अप कर लेते हैं. कोई अगर नया बायर हुआ, उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है हमारे पास, जिसका बिड हम लोगों ने काफी पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है. तो ये सारा चेंजेस मैंने डाला, मतलब मैंने कस्टमर केयर में पूछा है, ये लोग बोलते हैं आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, कब होगा पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये चेंजेस. राइट. सी टेक्नोलॉजी पार्ट में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो जेम बता सकता है आपको. डिपार्टमेंट साइड से क्या होगा वो जेम नहीं बता सकता, क्योंकि जेम एक प्लेटफॉर्म है, वो फॉलो करता है जो बायर्स उसको दे रहा है और आउटपुट निकाल के देता है सेलर्स के लिए. सो डिपार्टमेंट के साइड से क्या प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज के अंदर प्लस आने वाले हैं, वो डिपार्टमेंट, वो जेम के पास में प्रॉपरली चीजें नहीं होती हैं. बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि जेम 5.0 में डिले हुआ है, बट जेम 5.0 जब रिलीज होगा, इट कैन माइट बी टेक मोर फ्यू मंथ्स,
बट काफी चीजें उसके अंदर सॉल्यूशंस के साथ मिलेगी आपको। ओके, अभी सर एक रिसेंट सिचुएशन आपको बताता हूँ। 2-4 दिन पहले हम लोग को एक ऑर्डर मिला है एनटीपीसी से। तो उसमें जो ऑर्डर आया है उसमें बायर का जीएसटी नंबर नहीं दिया हुआ इसमें। तो क्लाइंट को मैं जानता हूँ, तो उनको मैंने फोन किया कि सर आपने तो ऑर्डर में जो ऑटोमेटिक ऑर्डर रिसीव हुआ है उसमें तो आप जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किए हो सर। तो बोलता है कि ये तो जेम के साथ आप फॉलो अप कीजिए। क्यों नहीं है, हम लोग को तो पता नहीं है, हम लोग तो दिए थे सारा कुछ। हम बोले सर आप मेरा मैं यहाँ से एज ए सेलर बोलूंगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देगा, आप बायर हो सर। बोलता नहीं, हम लोग के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप बोलिए जेम में नहीं, ये कि जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट, में। ये इस बिल्कुल सही बात है, ये डिपार्टमेंट से आपको आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल एरर है। अगर ये क्या हो गया कि डॉक्यूमेंट में कोई चीज मिस प्रिंट है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हमें जेम को ही टिकट जनरेट करना पड़ेगा कि हाउ कैन आई जनरेट द इनवॉइस विदाउट द जीएसटी नंबर, एंड जीएसटी number is not mentioned in the tender document, so kindly avail the GST number, so definitely they will help it out into that. ओके, थैंक यू सर। Most welcome नितिन sir. जी, हाँ नितिन जी, हमारी 2 क्वेरीज है। जी एक है हमारा, जैसे हम लोग नए हैं, हम लोग टेंडर्स में अभी 1 महीने से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक समझने में हम लोग दिक्कत आता है, टेंडर क्लोजर डेट एक मेंशन रहता है और बिड वैलिडिटी डेट मेंशन रहता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? और एक चीज हम, अच्छा ये पहले से बता दीजिए। आपने कौन सी डेट बताई? बिड क्लोजिंग डेट, बिड वैलिडिटी डेट और टेंडर क्लोजर डेट दोनों मेंशन रहता है। बिड वैलिडिटी डेट समझे मेंशन है 30 दिन का, और टेंडर क्लोजर डेट एक पर्टिकुलर डेट मेंशन है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सी टेंडर क्लोजिंग डेट ये हो गया कि किस दिन ये टेंडर्स बंद हो जाएगा, मतलब उसके बाद में आप बिड पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, एंड बिड वैलिडेटेड ये हो गया कि अगर आपने बिड में पार्टिसिपेशन कर लिया है तो जो रेट मेंशन किया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है बिड पार्टिसिपेशन के बाद में पीओ आने में काफी टाइम लगता है। तो अगर वो जो पीओ है वो आपने जो भी रेट पीओ में अंदर डाला हुआ है वो बिड वैलिडेटेड जितने भी दिन का मेंशन है उस उतने टाइम के लिए आपका वो रेट वैलिड रहेगा। अच्छा नितिन जी, हेलो। जी सर। सर हमारा फर्म रजिस्टर्ड है जेम के अंदर में जी, और ये ऑलरेडी आपका 1 मंथ से ज्यादा ही हुआ है रजिस्टर करने में, लेकिन उसमें प्रोडक्ट अपलोड करना कैटलॉग का ये बहुत दिक्कत का काम है। और जब तक अपलोड नहीं हो रहा है वो टेंडर कॉल नहीं कर रहा है, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करने पा रहा है। और जो ये कैटलॉग जो बनाना है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो ये अगर मान लो कैटलॉग नहीं बनाए तो क्या वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने का, या और कोई इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन कुछ और ऐसे? थैंक यू सर देखिए, जब तक आप उनको ये बताओगे ही नहीं कि आप कौन सा माल बेचते हो, वो खरीदेंगे कैसे? अच्छा, हाँ, तो उनको आपको बेचना है तो माल तो बताना पड़ेगा उनको। अच्छा। तो और वो बताने का तरीका जेम के अंदर प्रोडक्ट अपलोड करना ही है, तो आपको प्रोडक्ट तो अपलोड करना पड़ेगा सर उसके अंदर। तो और कोई अल्टरनेट तरीका से लोड करने का, और कोई तरीका, क्योंकि इसको लोड करना बहुत मुश्किल है, ये दिक्कत लग रहा है। सर इसके अंदर तरीके में तो ऐसे हैं कि काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका आप कांटेक्ट कीजिए, तो वो आपको शायद जो भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो इजीली दे सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। आपका थोड़ा फोन नंबर थोड़ा शेयर कर लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो ठीक रहेगा। सर प्लीज, मैंने आपको बोला है कि फोन नंबर ऐसे नहीं ले सकते हैं, आपको जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, मैंने रेज भी किया है। हाँ जी, और वो जैम पोर्टल का वेबसाइट पोर्टल आप दे सकते हैं क्या थोड़ा, और उस पे कैसे रजिस्टर? gem.gov.in जैम्स जे स्पेल इट आउट प्लीज। gem.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जेम का। सर मैं आयन। यस मिस्टर मलाकर। थैंक यू। Yeah. Sir, this is Ayan Malakar. Actually, I'm working with a bank, and presently I have started a startup for export business. So I'm export business. Okay. So I'm planning to start a merchant export business as a startup. So is it feasible for me to participate in these tenders, being an startup export business?
Yes, definitely. If you having the product and that is demanded by GEM, demanded by any of the department through the tender, and if you are qualifying for that, definitely you can participate into that. Okay. Thank you so much, sir. Most welcome, sir. Hi, sir. Good evening. This is Sumit Das. Actually, we have uploaded our products in the GEM portal in the catalog, and in the catalog there is option of so we have to declare the local MII content, and but due to difficulty in the GEM catalog, we can't put the local MII content that is 100%, and also we have contacted so many times with the help desk, but till now they have not resolved that, and for that reason we are not able to participate in the ongoing bids, because in the most of the bids there is a new rule of showing the local content of more than 50%. So what can we do on that? So can we just put any documents of our manufacturing units on that during the participation or bid, or we have to wait for the result from the GEM help desk? See, this is a technical questions that is depends upon the requirement of the department and development from your side, and that should be matched uh, from both of you. If GEM is demanding, actually GEM is not demanding. Demand is from the department. GEM is the just platform that's showing you the requirement of the department. So whatever they have mentioned in the specifications for the product, that you have to definitely fulfill the thing. If you are not able to fulfill, you have the chance that you can generate the ticket, or you can ATC. There is an option of the ATC. Suppose you want to participate in tender and you can think this is okay, as similar as you can think for the other tenders, so you can file the ATC. That is options available while you are submitting by mentioning all your means into that. If department think this is okay and we don't have any problem, so against that ATC they can accept your bid and they will not give you the technically disqualifications. So I think ATC will help it out in such conditions until unless you are not getting any response from GEM. Actually, sir, in the last tender we are participating, there was a ATC clause, and apart from this, at the end they are demanding for the MII declaration. And for the MII declaration, we are uploading our undertaking on that, mentioning that we say we are not procuring any raw materials from the say in other countries. But when we just submitting that, it's showing the error with and with the notification that the local MII content has not mentioned in our catalog, and that's because of the technical error we are not able to mention that, and that's for the reason most of the bids in the most of the bids we are not able to participate. And also there is some guidelines in the GM that below 200 crore there will be a 50% of local content. Right. So this is a technical questions that I think you have to work on some of your product as well, where you can meet all the requirements of the department and do it. And if you think this is not the, as per not your saying, then you can generate the ticket. But I think GEM is only the platform because it's a technical error, and technical Yes, sir. error can be only resolved by the GEM and department. What we can do from our end, we can generate the ticket and put our concern against the GEM. Okay, sir. Thank you, sir. And one more question, Josh, I just forgot to ask. You have mentioned the GEM portal, eProcure, and nProcure. So in these three portal, the similar kind of bids I can have in all the three portal, or I have to take another subscription alternatively for all of the three? See, e-procurement also, these all are the government portals. So there is no requirement. If you think there is a available opportunities available for you on nProcure, then only go and pay the amount of on nProcure. So before registering on nProcure, do check all the portal and find out is there sufficient inquiries available for your business. Then only register over there. E-procure is free, so definitely you can register over. There is no money required over there, so you can register on that platform and you are already doing business with them. Thank you so much, sir. Yeah. So it was a really
good time today, and I think there are still a lot of questions. Hello. But we'll So, Mr. request, Mr. we have the Prosadji, paucity of time. So we'll request to send your questions to our Mrs. Mulmun Banerjee, Okay. who will collate and forward it to Mr. Nitin Jain for his answers. So now it is the time to extend our vote of thanks to Sri Nitin Jain. So on behalf of the chamber, as also on my own, it gives me great pleasure to propose a vote of thanks on this occasion. In spite of the importance in the economy, the MSME sector is bogged down by considerable constraints that dwarf their growth potential. In such a scenario, robust supply relationships with central and the state government and PSUs present a significant opportunity for MSMEs by addressing the issue of adequate market access and linkages. A methodical approach is required to be built, sustain, and nurture strong supplier relationships between government and PSUs and MSMEs, which can result in long-lasting benefits for all the stakeholders involved as well as for the economy as a whole. Our learned speaker has deliberated on various key features in great length, which has certainly cleared many doubts. We are extremely thankful to Sri Nitin Jain, Director Marvel Infocom and nationaltenders.com, to participate in the session as the guest speaker and also the answer to queries. We thank all the participants for their august presence. We thank the members of the media fraternity for joining this program and hope that the deliberation will be carried in your esteemed media in a befitting manner. May I now propose a very hearty vote of thanks and request you all to carry this with acclamation. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. So with this, we end the session and look forward to more such grilling sessions in future. Thank you, Nitin. Thank you so much, sir. Thank you so much, Nitin Ji. Thank you so Hard much, hitting Manju. questions. Thank you so much. Thank you so much. We will have another series, another round very soon. Sure, man. Very Sure. soon. Pleasure. Yeah. Thank you. Maybe after a couple of months, sir. Maybe after a couple of months. Definitely, ma'am. For sure. Thank you, Yeah. sir. Please take care. Chaliye. Namaste. Namaste. Bye, sir. Bye. Bye, Nitin.